में, मतलब स्पेशली आई वुड से ऑल क्रेडिट्स टू मुनव्वर एंड केवी, जब वो एक साथ होते थे तो मुझे उनका गेम बहुत ही गंदा लगता था. मे बी दैट वाज गुड फॉर द शो बिकॉज दैट्स व्हाट द शो इज ऑल अबाउट. मैंने कई बार शो में अलग अलग लोगों को डेमो करके दिखाया था कि अगर मैं आपको ऐसे पकड़ लूं और हिलने ना दूं और कंस्ट्रिक्ट कर दूं, आई एम टेकिंग अवे योर फ्रीडम फ्रॉम यू. इज दैट हिंसा और नॉट? बिकॉज फिजिकली आई एम ट्राइंग टू कंस्ट्रिक्ट यू. इट इज हिंसा, राइट? एंड बार बार इस मुद्दे पे बात करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, ना ही मेरे पास इतना टाइम है, क्योंकि जो मेरी पर्सनल लाइफ है वो मेरी पर्सनल है. कोई मुझे हेल्प करने आ नहीं रहा, सिचुएशन से मुझे ही हैंडल करना है, तो उसके बारे में बात करके फायदा क्या है. Nisha, welcome to E Times TV. How are you? Thank you, Vijay Lakshmi. I'm good. How are you doing? I am good. Thank you. And आपने काफी धमाकेदार तरीके से गेम को खेला, शानदार अंदाज में. काफी दोस्त बनाए, जहां पर जरूरत लगी वहां पर आवाज भी उठाई. How will you sum up your journey? Thank you so much for your kind words, Vijay Lakshmi. It means a lot. The journey has been absolutely incredible, and it is definitely, I think, by far I can say once in a lifetime journey. दोबारा कोई कहेगा तो सोचूंगी definitely, but फिलहाल when I look back and I see it's been very rich in experiences, because 5 हफ्तों में इतने अलग अलग लोगों से डील करना, अलग अलग सिचुएशंस में अपने आप को पाना और उन चैलेंजेस को ओवर करना अपने आप में ही एक जर्नी थी. And it's been very beautiful. Now that I look back, I feel really, was I sleeping on the floor? Was I doing all those bartans and cleaning bathrooms and dealing with so many people who are something else on your face and something else behind? But it was an extremely humbling experience and an absolutely enriching one at the same time. What was the most difficult and most challenging part of staying in that lockup jail? पहले लगा था कि जमीन पर सोना है, माय गॉड ये कैसे होगा, फिर लगा अच्छा यहाँ पर तो ऐसे कार्पेट टाइप फील हो रहा है, सॉफ्ट है, इतने कोई इश्यूज नहीं होंगे. बट इट वाज, आई थिंक, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट थिंग्स वर जमीन पर सोना. सेकंड वाज ठंडे पानी से नहाना. हालांकि गर्म पानी आता था एक बार 1 घंटे के लिए दिन में, एंड बट उससे भी हमने डील कर लिया. फिर लगा कि हाउ एम आई गोना ब्रश माय टीथ, बिकॉज यहाँ तो वॉश बेसिन भी नहीं है. सो दैट, एंड देन जब बर्तन धोने होते थे तो लगता था एटलीस्ट चलो बर्तन धोने हैं तो किचन में सिंक तो होगा, बट यहाँ पर तो वो भी नहीं था, आपको झुककर बर्तन धोने थे. सो आई थिंक द फिजिकल challenges that came my way were one of the toughest. But about a week passed and 10 days passed, and then I was like, it's not that bad. Human bodies and experiences are made with such complexities, and it's so beautiful ki you just learn to adapt. And then it felt like I just belonged to that place. It had become my second skin. And now when I came back home, I was like really, I was sleeping on the floor. How am I going to sleep on this bed now? Do I even deserve it? And then I actually slept on the carpet the first night on the floor, because I think I was telling everybody there, I think I'll have to wean myself off of these habits. So, but it was extremely humbling. And I am very grateful that my journey was so amazing, full of ups and downs, but lots of muddas also. It taught me to push through in life, and things that we are served on a platter, things that we are not so grateful about. It also made me reach out. It made my heart reach out to people who live in lockups, actually. The entire system of our country and other countries in the world that fight for, getting justice. And I also realized that in a lockup, there are people who are victims and criminals. And how difficult it must be. So it puts you in a spiral of various thoughts, And एक टाइम ऐसा भी था जब 3 रातों के लिए मैं बाहर सोई थी यार्ड एरिया में, क्योंकि साइशा ने वो पनिशमेंट चूज की थी अपनी टीम के लिए. वो भी एक अपने आप में एक एक्सपीरियंस था. बट बाहर सोना, गर्मी में सोना, उस समय बॉम्बे में लू चल रही थी, मच्छर, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. बिकॉज अगर आप मच्छरों से बचने की कोशिश करो तो आप कंबल ओढ़ोगे तो आपको गर्मी होगी. एंड देन इट वाज लिटरली लाइक दिस वन बिग माचिस का डब्बा, विदाउट एनी वेंटिलेशन एंड एयर. बट it was extremely challenging. It plays on your mental state, because ना ही आपको सिर्फ उन grueling circumstances में सोना है, उठना है,
सोने और उठने से याद आया कि रात तो वहाँ कभी होती ही नहीं थी, क्योंकि उजाला हमेशा रहता था आपकी आंखों पर, लाइक वो स्पॉटलाइट्स एंड वो सब कलरफुल लाइट्स ऑफ ऑरेंज टीम की ऑरेंज लाइट्स, ब्लू टीम की ब्लू, इट वाज लाइक समथिंग एल्स. फिर सुबह उठते थे तो द टेम्परेचर्स हैड बिकम लाइक लिटरली बोन फ्रीजिंग. एंड फिर वो डंग डंग की आवाज से यू नो गैसियों को जब उठाया जाता था, सो इट वाज डेफिनेटली टॉर्चरस. इसके अलावा हमें टास्क्स मिलते थे दिन में, एंड तो जैसे जैसे दिन बीतते यू स्टार्ट गेटिंग मोर एंड मोर टायर्ड मेंटली बिकॉज of all the other physical aspects also that are involved, you know, in being a part of the game. But overall it was challenging, extremely challenging, mentally, physically, emotionally. It was challenging, but it was enriching. And you made lots of friends in the house. निशा, आपके ऊपर काफी लोग भरोसा करते थे, ट्रस्ट करते थे, वो बहुत बड़ी बात है. लेकिन किसने आपको घर के अंदर सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया? हाँ, मुझ पर लोग भरोसा बहुत करते थे. पता नहीं दोस्त बहुत बनाए कि नहीं, क्योंकि हर कोई गेम खेलने आया था. और इतने सारे अब हमने रियलिटी शोज देख लिए हैं एंड एवरीबडी नोज एवरीबडी. हर कोई किसी ना किसी को जानता है जो पहले कोई रियलिटी शो कर चुका है, लाइक बिग बॉस और व्हाटएवर. सो पीपल आर ऑन द बैक फुट. पीपल नो दैट यू नो ज्यादा दोस्त बनाओगे तो दिल टूटेंगे, फिर नॉमिनेट करना पड़ेगा. ये सारी चीजें आप यू नो प्रिपेयर होके आते हो. लेकिन फिर भी आपको पता होता है कहीं ना कहीं जितना भी आप गेम खेलने की कोशिश करो, एक वाइब होती है, एक ऑरा होता है जिससे इंसान अट्रैक्ट होता है और मन करता है दूसरे इंसान से बात करने का, अपने दिल की बात करने का. स्पेशली जब अपने फैमिली से, लव्ड वन से दूर रहते हो इतने दिन रात, लाइक 24/7 कैमरास आर ऑन यू एंड यू आर प्लेइंग अ गेम. तो कई लोगों ने मुझे ट्रस्ट किया. हालांकि आपको कई लोगों के साथ मेरा ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ नहीं नजर आया होगा कुछ लोगों के साथ, लेकिन अचानक आप देखोगे तो एक बहुत ही डीप कॉन्वर्सेशन या एक ऐसा मोमेंट उन्होंने शेयर किया. तो that itself is proof that you know in the back of your heads that these are the people you can trust, but then you're still being on the back foot. And about your other question that ne aapka disappoint kiya hai, I think Saisha, because I thought that we were close somewhere, maybe we still are whenever she comes out, but you know sometimes you feel that ye to aisa nahi kar sakte. और फिर वो छोटी सी भी बात आपको उनके बारे में पता चलती है तो देन यू गेट टेकन अबैक. एंड ऑफ कोर्स उसके अगले ही पल में आप अपने आप को बोल देते हो दैट इट्स ओके, इट्स अ गेम, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, यू नो देयर आर इवन वर्स पीपल दैट माइट डू समथिंग एल्स, बट देन डिसअपॉइंटमेंट तो होती है. सो आई थिंक साइशा आई वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड इन एट टाइम्स. आपके और पायल के बीच में एक बहुत हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग नजर आई निशा. लेकिन यू नो आपके निकलने से 1-1.5 हफ्ते पहले हमने देखा कि आपका जो झुकाव था वो मुनव्वर की तरफ बहुत हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि बैक टू बैक इतने वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हो रहे थे कि कहीं ना कहीं एक आप पर भी मुनव्वर भरोसा दिखा रहे थे, जो घर में सबसे ज्यादा यू नो लोग उनको मैनिपुलेटिव बोलते थे. काफी लोगों को ऐसा भी लगा कि यू नो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके और पायल के बीच में ज्यादा डिफरेंसेस आ गए, नहीं तो हमेशा एक तालमेल था आपके और पायल के बीच में. व्हाट डू यू हैव टू से? So technically you're talking about a triangle, me, Munawwar, Payal. Regarding Payal, मेरी जो 5 हफ्तों की जर्नी थी, शुरू में पायल ऑरेंज टीम में थी और मैं ब्लू टीम में थी, तो मेरा उनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं. मुझे सिर्फ दिखता था कि एक लड़की है जो हमेशा मुद्दों पर बात करती है, या यू नो दोज आर्ग्यूमेंट्स वर मोर लाइक इन हर टीम. और कई बार मुझे ऐसा दिखता भी था कि उसे बड़ा साइडलाइन कर दिया गया है, या शी इज नॉट रियली एबल टू बी अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस, या उनके जो चुआ मीटिंग्स जिनको मैं बोलती हूँ वो जब चलती थी और डिसीजन होते थे और स्ट्रैटेजीज बनती थी, तो ऐसी वाइब मुझे आती थी कि उसे बड़ा ही साइडलाइन किया जाता है उसकी टीम में. बट हमारा ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था बिकॉज ये गेम ही बहुत अलग टाइप का है कि टीम बना दी गई हैं दोनों, और फिर बहुत रूल्स हैं कि आप एक दूसरे के बैरक्स में नहीं जा सकते, यू नो आपको हमेशा अपनी टीम के साथ रहना है. ऑटोमेटिकली ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं. तो उन पहले 2 हफ्तों में मेरे पायल के साथ इंटरेक्शन हुआ नहीं. उसके बाद मेरा ये कंक्लूजन होने लगा कि ये ऐसे क्यों हो रहा है उसके साथ, यू नो सब लोग क्यों उसे साइडलाइन कर रहे हैं. जब हमारी टीम स्वैप हुई और पायल और मैं एक ही टीम में आए, तब मैंने उन्हें थोड़ा ज्यादा करीब से जाना. और कुछ ऐसे हादसे हुए थे, जैसे कि अगर आपको याद हो एक चकली बनाने वाला टास्क हुआ था, जहां पर सबसे पहले शिवम ने डब्बे डिस्ट्रॉय किए थे,
फिर हमारी शिवम टीम ब्लू से था, तब मैं टीम ऑरेंज में थी। शिवम ने डब्बे डिस्ट्रॉय किए और अली ने टीम ऑरेंज से टीम ब्लू के जाके चकलियां डिस्ट्रॉय कर दी। उसके बाद पायल ने टीम ब्लू के डब्बे डिस्ट्रॉय किए, इस बार चकली के साथ। सो टीम ऑरेंज में मतलब स्पेशली आई वुड से ऑल क्रेडिट्स टू मुनव्वर एंड केवी, जब वो एक साथ होते थे तो मुझे उनका गेम बहुत ही गंदा लगता था। मे बी दैट वाज गुड फॉर द शो बिकॉज दैट्स व्हाट द शो इज ऑल अबाउट, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ योर ब्रेन, या किस तरीके से आप मैनिपुलेट करते हो या कैसे अपने गेम को यूज करते हो। दैट्स ओके, यू नो, आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट, बट मुझे एज अ पर्सन बहुत अजीब लगता था बिकॉज इन रियल लाइफ आप ऐसे इंसानों को मिलते नहीं हो, यू नो, बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, सिचुएशंस अलग होती हैं, बैक आउट कर जाते हो, आप बोलते हो नो दिस इज नॉट फॉर मी, आई एम नॉट गोना वेस्ट माय टाइम ऑन ह्यूमंस लाइक दैट। बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज इन अ गेम, आई हैड टू शो माय रिस्पॉन्सेज एंड यू नो टू ह्यूमंस लाइक दैट। सो पायल का बहुत ऑपोजिशन हुआ था उस टास्क में, और मुझे याद है साइशा और मेरी भी आर्ग्यूमेंट हुई थी। साइशा ने बोला था दैट आई डोंट सपोर्ट पायल एंड आई सेड आई सपोर्ट पायल बिकॉज इफ डिस्ट्रक्शन हैज बीन इनिशिएटेड फ्रॉम द अदर टीम्स एंड एंड इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द नॉर्म, देन ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन का जवाब तो डिस्ट्रक्शन से ही दिया जाएगा। आप आरती तो नहीं उतारोगे, ताली तो नहीं बजाओगे। सो आई सेड ओके, इफ पायल डिस्ट्रॉयड इट, I mean, I support her. Good thing. I mean, it's up to her how she wants to respond, right? And तब मुझे याद है कि जब पायल ने डिस्ट्रॉय किया और सारी टीम ब्लू उसके पीछे आ गई, obviously, you know, ये उसका टास्क के प्रति था, तो I didn't want that effort to go waste. तो मैं वो सारे चकलियों के डब्बे कलेक्ट करने लग गई और साइशा को बोलने लग गई हेल्प मी, एंड चेतन और अली को कहा था कि प्रोटेक्ट। एंड जब मैंने वो डब्बे संभाल लिए तो मैं गई देखने के लिए कि क्या हो रहा है पायल के साथ। तो मैंने देखा कि अंजलि और पूनम वर लाइक राइट ऑन हर फेस, एंड अंजलि ने उसको ऐसे जकड़ा हुआ था, पूनम ने अपने नोज टू नोज करके उसको वॉल तक, यू नो, शी हैड टेकन हर, पुश्ड हर, व्हाटएवर, yeah, she was abusing her. So I'm like, what are you guys doing? Just take a chill pill, you know. And उस समय because मैंने कहा मैं पायल को support कर रही हूँ, everybody was against me. That was like the first mega event where people thought that I am with Payal. Now I explained to those guys that पायल का डिस्ट्रक्शन करना गलत नहीं था। तो केवी का बोलना था कि अगर शिवम ने आपके डब्बे डिस्ट्रॉय किए तो आपको भी हमारे डब्बे डिस्ट्रॉय करने चाहिए थे। मैंने कहा ऐसे नहीं होता है, you don't set the bar of destruction, you make the move and then the other person makes his move, right? Yeah. As per his bar, so it doesn't work like that. तो वो टीम का हमेशा इतना ज्यादा मैनिपुलेशन होता था कि उन्हें लगता था कई हद तक कि दूसरे बेवकूफ हैं, you know. Anyway, so then that kind of, you know, started making the entire jail, all the कैदीज turn against me and they thought that Payal and me were a team. जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उनको बोला उनकी जगह अगर आप भी होते, मैं उस सिचुएशन को सपोर्ट कर रही हूँ, ना कि पायल को, यू नो, कोई भी हो सकता था उसकी जगह पे, एंड आई सपोर्ट हर, शी हैज द राइट टू रिस्पॉन्ड इन व्हिचएवर वे शी वांट्स टू रिस्पॉन्ड, बट होल्डिंग समबडी, pushing their nose on someone's nose is also hinsa according to me, right? And they were all like, no, हिंसा नहीं है, हमने तो धक्का मारा, हमने तो ये किया, धक्का नहीं मारा, हमने तो पकड़ा था। ऐसे वो बड़े टेक्निकल हो जाते थे। तो अगर आपने देखा होगा, मैंने कई बार, यू नो, शो में अलग अलग लोगों को डेमो करके दिखाया था कि अगर मैं आपको ऐसे पकड़ लूं और हिलने ना दूं और कंस्ट्रिक्ट कर दूं, आई एम टेकिंग अवे योर फ्रीडम फ्रॉम यू, इज दैट हिंसा और नॉट? बिकॉज फिजिकली आई एम ट्राइंग टू कंस्ट्रिक्ट यू, इट इज हिंसा, राइट? आई एम पुशिंग माय नोज ऑन यू and pushing you all the way to the wall, two people are pouncing on you, the other people are, no one's helping you, this is hinsa. So I'm like, I don't support this. उसके बाद एक मोमेंट आया जब पायल ने झोल घर में सॉल्ट चूज किया था कि घर वालों को, कैदियों को सॉल्ट ना मिले और उसके बदले में वो पेडिक्योर लेंगी या जंक फूड लेंगी, ऐसे कुछ। तो मुझे तो उसकी बहुत ही काबिले तारीफ लगा था वो मूव, और मैंने क्लैप भी किया था उस बात पर। सबको और गुस्सा आया था कि तुम क्यों क्लैप कर रही हो, तुम क्यों सपोर्ट कर रही हो। मैंने कहा बिकॉज आई थिंक इट्स फैबुलस। अगर वो सिस्टम में रह के जो ऑप्शंस जेलर ने उसे दिए उसमें से रह के वो अपना रिवेंज या अपना जो कुछ भी तुमसे ले रही है, तो अगेन इट्स अ गेम, राइट? एटलीस्ट शी इज नॉट टकिंग an option C from the sky. She was given these options, so the jailer wants you to play it out like that. And she has the right. She's not doing hinsa, she's just going through the system and doing it. So I really liked it. और मैंने कहा don't forget that आप लोगों के साथ साथ मुझे भी सॉल्ट नहीं मिलेगा, आप लोगों के साथ साथ जो भी 12-13 लोग थे उस समय घर में, मुझे भी एक ही बाथरूम मिलेगा नहाने के लिए। So I'm like, but I support her thoughts. अगेन उसकी जगह पे कोई भी हो सकता था, यू नो। सो आई थिंक दीज आर द टाइम्स जब लोगों को कई बार लगा मैं पायल के साथ हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे उनकी ये बात अच्छी लगती थी कि वो खड़ी होती हैं, बातों के लिए बोलती हैं, लेकिन
फिर आई थिंक मेरा जो बबल था उनके लिए वो कंप्लीटली बर्स्ट हो गया द डे आई वाज कमिंग। मी एंड पायल हैड अ बिग फाइट। तो गिनतियां उन्होंने छुपा दी थी, अगर आपको पता हो तो। मैं 3 बार चार्जशीट में आई थी। पहली बार तो 9 out of 11 पीपल हैड कम इन द चार्जशीट, क्योंकि दोनों टीम्स में से एक एक को आना था और डिसाइड करना था म्यूचुअली एक नाम, तो वो कोई कर नहीं पा रहा था क्योंकि कोई भी दूसरी टीम को वोट नहीं करना चाहता है। सॉरी, अपनी टीम से किसी को वोट नहीं करना चाहते, दूसरी टीम के करना चाहते। सो इन दैट केस, इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम, दे हैड टू वोट फॉर देमसेल्व्स। एंड देन द सेकंड टाइम पायल का गलत कैलकुलेशन, बीइंग अ टीम लीडर, जब उसे बेनकाब जोन में बुलाया गया कि उसके पास 3 cards plus 2 cards plus 1 card plus 1 card था, she had to divide it. Again, that's how I came to the charge sheet. मुझे उस दिन 2 ही votes मिले थे to go in the charge sheet. Third time हमारी जो बोली लगी थी उसमें मेरा बेस प्राइस 70 था एंड पायल के पास अब भी 35 कॉइन्स थे। मुनव्वर मुझे बाय करना चाहता था बट उसके पास टोटल 35 कॉइन्स थे। पायल had 70 plus 35. So had she given those 35 coins too, I wouldn't have come in the charge sheet, because बहुत clearly वो लोग बोल रहे थे कि चार्ज शीट इस पर डिपेंडेंट है कि आप पर कैसी बिडिंग होती है। सो क्लियरली जिसकी बिड सबसे कम होगी वही चार्ज शीट पर जाएगा। सो उसने कई सारी ऐसी बेवकूफियां की है because she did not trust the people around her. Like Kangana also said that उनका जो emotional bond था लोगों के साथ वो कर नहीं पाई, whatever her trust factor might be with people. And वो इतना पूरा गेम के point of view से वो देखती थी कि she, at some point I realized that is she even human, because human beings have a range of emotions, right? You cry, you laugh, you feel the pain of separation, then you play a game, you're also manipulative, you get angry, then you laugh a little, you chill a little, and then you cry a little. But the only emotion that I saw in Payal was game. ये करना है. So hats off to that focus, but I think she was focusing on the wrong things also, because last दिन मैं बता रही थी कि जो मेरा झगड़ा हुआ था, मैंने उनसे गिन्नियां मांगी थी। 35 गिन्नी थी, हम 7 लोग थे हमारी टीम में, तो मैंने कहा था 5 गिन्नी per person, 7 5s are 35, just distributed amongst everybody because people don't trust you anymore, what you'll do with the guineas. So here's the thing, see, 2 wrongs don't make 1 right, है ना? अगर विनीत ने गंदे तरीके से पायल के साथ बिहेव किया तो वो तरीका गंदा था, उसका रिस्पॉन्स था, ऑब्वियसली उसका गेम था, फिर उस पे लोग कमेंट भी करेंगे और उसके हिसाब से उसको वोट्स भी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, जो भी कुछ होगा, कैदियों की रिस्पेक्ट वो अर्न करेगा, नहीं करेगा, डिसरिस्पेक्ट अर्न करेगा, वो भी गलत था। बट आपने पहले, मुझे हमेशा लगता था कि पायल के साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको अभी एक लंबी चौड़ी एक्सप्लेन की। बट ग्रेजुअली जब मैं उनकी टीम में आ गई और मैंने उनसे क्लोजली जब एसोसिएट किया या मैं उनके साथ डील करने लग गई, तब मुझे पता चला कि पायल इज सो फोकस्ड ऑन द गेम, विच माइट बी गुड फॉर द गेम, बट वो किसी के साथ, चाहे वो पर्सनल जाना या गंदी से गंदी बातें करना या कोई भी सीन क्रिएट करना, जैसे अगर मेरा आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, और अगर किसी और का आपके साथ प्रॉब्लम अचानक हो गया तो मैं जाके उसको बोलने लगूंगी कि अच्छा वो तो मेरे साथ भी ऐसे करती है, तेरे साथ भी ऐसे करती है, फिर बार बार आपको याद दिलाना कि याद है ना उसने क्या किया था तुम्हारे साथ, याद है ना क्या किया था, फिर उन चीजों को जोड़ना। सो ऑल दीज थिंग्स वर सच बैड नेगेटिव क्वालिटीज कि पहले हफ्ते से जो होता आ रहा है, लोगों की केमिस्ट्री चेंज हुई, बहुत कुछ हुआ, पायल हमेशा वो कैरी करती थी, कनेक्ट करती थी, स्ट्रैटेजी में अपने उसको घुसाने की कोशिश करती थी। सो आई थिंक दीज वर द वेरियस रीजंस फॉर व्हिच शी लॉस्ट रिस्पेक्ट। नाउ कमिंग टू दैट डे ऑफ डिस्कशन, जब हम अरीना में गए थे, पायल ने शिवम को जाके बोला कि क्या तुम उन लोगों के लिए खेल रहे हो, क्योंकि काफी लोगों को बाहर से लगा देखकर, एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि काफी ऑडियंस को लगा, मैं समझ गई, करेक्ट, मैं भी उस ऑडियंस का ही एक पार्ट थी, अगर आपने देखा होगा तो, ऑब्वियसली बिकॉज़ आई वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द गेम, आई कुड सी व्हाट यू कुड सी, राइट? नाउ व्हाट हैपेंड इज, शिवम ने टास्क बहुत ही अच्छे से किया, ये आप लोग जानते हो। उस टास्क के 2 पार्ट्स थे, एक जिसमें उन्हें पार्टिसिपेट करना था इन द होल चैलेंज, अच्छा किया, लेकिन सेकंड में उन्होंने नहीं किया। लेकिन अगर उन्हें अच्छा नहीं करना होता या वो जानबूझ के अच्छा नहीं करते तो वो पहले पार्ट में भी बहुत टाइम किल कर सकते थे। इनफैक्ट जिन्होंने अच्छा नहीं किया था वो थे मंदना और पायल। भले ही पायल बैफल हो गई या उन्होंने वो सैक नहीं लिया या जो कोई भी रीजंस थे उसके, आई एम श्योर वो बैफल ही हुई थी, डिडंट लुक लाइक शी डिड इट, क्योंकि उनको अचानक से जाना पड़ा था। और मंदना अगेन वाज नॉट गिविंग अप ऑन टाइम।
क्या नाम उसका, जीशान बोल रहा था नहीं वंदना को गिव अप करने मत बोलो बिकॉज उसका मोरल डाउन होगा, उसको 2 बार और जाना है। मैंने कहा अगर 2 बार और जाके उसका मोरल डाउन भी होता है, वो गिव अप भी करती है, तो भी 7 बार कोई और जाता है, विच इज इंक्लूडिंग यू एंड शिवम, 70 kgs अप एनीवे। एंड जितना भी अगर हम टास्क जीते भी, जब करण कुंद्रा ने बोला कि इस ऐसी हार को हार नहीं बोलते हैं, राइट, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ शिवम। Technically, Shivam worked very hard in the task. Yeah, true, also, true. not to forget that अगर आप शिवम का ग्राफ देखो उस अरीना के टास्क तक, शिवम is very invested in the game. तो ये होने के बाद भी अगर आप एक प्लेयर को बोलते हो कि वो सेकंड हाफ जानबूझ के नहीं मार रहा है, शिवम was very clear कि मुझे किसी के मुंह पे नहीं मारना है। Obviously, अब एक स्पॉट था जहां पर वो बॉल बार बार मारी जा सकती थी, वो था वो इलेक्ट्रिक जो पैनल था जिसमें वो बैट को ले जाया जा सकता था। सब सारे कंटेस्टेंट्स वहीं पर फोकस करते थे बिकॉज वहां बहुत फोकस की जरूरत थी। आप एक बड़ा सा ऑब्स्टिकल कोर्स पार करके आए हो, तो यू आर आल्सो पैंटिंग एंड तो सब वही फोकस करते थे। अब वहां पर जाने के लिए अंजलि झुकी हुई थी, झुकने की वजह से जो पोजीशन शिवम की थी वो एक फ्रेम बन गया था। बट वो सिर्फ ओवरऑल उसके लिए नहीं था, जिस तरीके से बार बार करण कुंद्रा भी, क्योंकि वो टास्क सबने लाइव में देखा था, करण कुंद्रा खुद बार बार शिवम का मजाक उड़ा रहे थे। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि वहां पे जो होस्ट था वो भी बोल रहा था कि तू क्या सो रहा है, तू बॉल लेने भी नहीं भाग रहा है, जीशान बॉल लेकर बार बार आ रहे थे। हाँ, अगर आप देखें तो मैं भी शिवम को बोल रही थी कि शिवम जोर से मारो, शिवम जोर से मारो। आई वाज आल्सो शाउटिंग फ्रॉम द ऑडियंस। ही वाज वेरी क्लियर कि मैं किसी के मुंह पे नहीं मारूंगा, बिकॉज अगर आपको याद हो तो शिवम की आंख में एक बार जोर से बॉल लगी थी जब वो खुद ऑब्स्टिकल के थ्रू जा रहे थे। उन्हें वो पेन याद था और वो बहुत क्लियर थे कि मैं नहीं मारूंगा। अगेन वो उनका इंडिविजुअल गेम है, बट एक टीम लीडर होने के बाद अगर आप एक ऐसे प्लेयर को ब्लेम करने की कोशिश करेंगे जिसने अपना 100% दिया, जिसके अपने रीजंस थे, हर कोई अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बोलता था मैं टीम के लिए प्ले कर रहा हूँ, कभी कोई बोलता था मैं इंडिविजुअल प्ले कर रहा हूँ। एज फार एज हिज रीजंस वर वैलिड, यू कैन नॉट से बार बार कि जानबूझ के करा था, जानबूझ के करा था। अगेन कैन नॉट और कैन तो बहुत सब्जेक्टिव है, आप बोलना चाहें तो कुछ भी बोल सकते हैं, फिर आपको अगले के रिस्पॉन्स के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। तो वो और पायल की आदत है दैट शी गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अभी इन द किचन आई डोंट नो हाउ इट स्टार्टेड, दैट्स व्हाई व्हेनेवर आई जॉइंड अ कन्वर्सेशन आई ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन से लोग फर्स्ट हैंड इन्वॉल्व है और वो क्या क्या बोल रहे हैं, उसके बाद ही मैं अपना कॉमेंट पास करूंगी अगर वो रिक्वायर्ड होगा तो। उस दिन भी मैं किचन में गई, मैंने जानने की कोशिश करी, तो शिवम ने बोला कि पायल ने आज सुबह भी मुझे ये बात बोली कि तुम जानबूझ के कर रहे थे। तो मैंने बोला उसने अभी ये बात बोली कि वो ये बात बोल रही थी कि उसने कल ये बात बोली थी, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस। बिकॉज उस मोमेंट में कुछ भी लग सकता है, बिकॉज शिवम उस मोमेंट में ऐसा लगा था जिसकी वजह से मैं आपको बोल रही थी जोर से मारो, ठीक है। सो उसका जो मोरल था वो बहुत डाउन हो गया था, क्योंकि अभी अभी वो ऑरेंज टीम से ब्लू टीम से ऑरेंज टीम में आया है। He also wanted to prove a point. He's very focused and invested in the game. उसके ऊपर उसके कन्विक्शन पर डाउट करना या एज अ प्लेयर उसके ऊपर डाउट करना, उससे वो बात नहीं अच्छी लगी। So he expressed his, sadness or objection to whatever Payal said. वहां से वो बात शुरू हुई थी। And उसके बाद उसने और कुछ बोला कि विनीत आके शिवम को भड़का रहा था, something like that she came and said. तो विनीत उस बात पे गुस्सा हुए और विनीत ने बोला कि मैं नहीं भड़का रहा था, बिकॉज बाय नाउ विनीत हैज आल्सो सीन हर फॉर अ वीक एंड विनीत बाहर से भी गेम देख के आए थे। और इंसान जब एक उसकी जो फितरत जो बार बार दिखती है, ऑटोमेटिकली लोग उसको ब्लेम करते हैं। विनीत उस पे भड़के थे कि वो जो वर्ड उन्होंने यूज किया था खरीदने वाला, उसके ऊपर अंजलि और विनीत उस बात को मुद्दा बना रहे थे, जबकि मेकर्स ने ही वो पूरा किया था ना। बेसिकली जो वर्ड यूज किया था ना पायल ने शिवम को खरीदा था। करेक्ट, बट पायल ने जस्टिफिकेशन में यही बोला था कि तुमको तो मैंने खरीदा था। बट सी आई टेल यू व्हाट, द वे पायल वाज ट्राइंग टू कवर अप फॉर इट, क्योंकि शिवम और मेरी और पायल की जब बात हुई तो पायल ने बोला मैंने शिवम तुम्हें एनकरेज करने के लिए बोला था कि शिवम तुम हारने के लिए कर रहे हो क्या। लेकिन पायल जब मेरे पास इमीडिएटली पोडियम में आई तो वो मुझे बार बार बोल रही थी, आई डोंट नो इफ दैट वाज शोन एडिटेड और व्हाटएवर इट वाज, कि ये शिवम ना जानबूझ के कर रहा है, शिवम ना जानबूझ के कर रहा है। मैंने कहा नहीं पायल, मुझे नहीं लगता। आपने बोला भी था घर के अंदर। करेक्ट, मैंने कहा मुझे नहीं लगता जानबूझ के कर रहा होता तो पहले वाले पार्ट में भी अच्छे से एफिशिएंटली नहीं करता ना। अगर उसका मुद्दा हमें हराने का ही था, और क्यों करेगा वो ऐसा, यू अंडरस्टैंड, उसको क्या फायदा, उसको क्या मिलने वाला है उसको। ही विल लुक लाइक अ बैड प्लेयर इफ ही डज दैट, करेक्ट। सो पायल अब अपना स्टैंड चेंज कर रही थी कि नहीं मैंने ऐसे बोला था, जबकि उसने वैसे नहीं बोला था।
तो मुझे मजबूरन वो बात बोलनी पड़ी जो पायल और मेरे बीच के थी कि नहीं पायल, अगर आप बार बार इंटेंट की बात कर रही हो तो गो बैक टू दैट अरीना एंड थिंक अबाउट, यू डिड नॉट गो एंड टेल हिम कि तुम इसीलिए कर रहे हो क्या, बिकॉज द वे यू केम एंड टोल्ड मी इट सीम्ड लाइक यू डिड नॉट बिलीव इन योर प्लेयर एंड द सेम वाइब्रेशंस you carried that same aura and you told your player whatever you had to say, because वो इतना इरिटेट हो गया था शिवम कि 2-3 बार वो पोडियम से नीचे भी आ गया था कि आप ही खेल लो, अगर आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं आप ही खेल लो। तो ऑलरेडी उसकी पोकिंग अरीना से चालू थी, अगले दिन सुबह भी चालू थी, जो कि पायल की आदत है, जिसकी वजह से कंप्लीटली शिवम ने लूज कर दिया था। इफ यू सी कंपेयर शिवम्स बिहेवियर इन हिज फर्स्ट वीक टू द 5th वीक, ही हैज हैड अ ग्राफ। उसने अपने आप को चैनलाइज किया है, उसने अपने एग्रेशन को चैनलाइज किया है। सो आई थिंक दैट इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। उसके बाद पायल ने गिन्नियों का चलो जो भी रिस्पॉन्स, सी मेरा पॉइंट ये, अगर आप गेम के रूल्स के कन्फाइंस के अंदर रहकर कुछ भी रिस्पॉन्ड करते हो, जैसे मैंने सॉल्ट की बात बोली, आई एम ओके विद दैट। अगर आप कन्फाइंस के बाहर जाते हो, लाइक हिंसा, इट्स नॉट विद इन द रूल्स। एवरी इंडिविजुअल कैदी हैज हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द चैनल, with the production house, that there will be no hinsa. तो वो हिंसा जब करते हैं तो वो उस रूल को ब्रेक करते हैं। I'm not okay with that because these are the things consciously decide and do. So I think that Payal in that was out and out wrong. उसने रिफ्यूज कर दिया गिन्निया यू नो शेयर करने से, चलो ठीक है वहां तक उसका गेम है। बट उसके बाद अंदर बैरक में जब वो आई और मैंने पायल को पूछा, पायल आप क्यों नहीं गिन्निया देना चाहते हो, व्हाट इज द रीजन आप नहीं दोगे, द गिन्निया बिलोंग्स टू द एंटायर टीम, वो आपकी अकेली की तो है नहीं, तो आप क्यों नहीं दोगे। टू व्हिच शी गॉट एंग्री, जीशान गॉट एंग्री, उनकी बहुत मचमच हुई। पायल जीशान के पास हुई, आई एंड जीशान के ऊपर पायल ने थूका। वी ऑल सॉ दैट, ठीक है ना। सो अ पर्सन हु कैन से वो खाने में थूक सकती है, फिर वो अगले दिन थूकती भी है। मैंने भी बिलीव नहीं किया था कि वो खाने में थूकेगी, वो बोल रही थी, पर मैंने पायल को बार बार बोला, बट पायल इज रॉन्ग टू से इट। अब सब उनको किचन से निकाल भी रहे थे, निकालेंगे ही ना, बिकॉज पायल पे और अब किसी को भरोसा था ही नहीं। मैं वही कह रही हूँ कि सब उसके बाद उनको जुट गए थे कि बाहर से बाहर निकलो, बाहर करेक्ट, बिकॉज वो कुछ भी बोलती है, वो पर्सनल भी हो जाती है। अगर आपने देखा उसके बाद उस बैरक में जो कुछ भी हुआ, फिर वो थूकी, फिर उसने बहुत सारी ऐसी चीजें बोली जो चैनल ने म्यूट कर दिया। Those were disgusting things. You know, I'm also not going to repeat it because I'm sure that is not good for the entire human race to hear things like that. क्योंकि आप तो अंदर बैठे हो, आप अपने आप को चार्जशीट से बचाना चाहते हो, आप अपने आप को कंट्रोवर्शियल करना चाहते हो, लेकिन बाहर दंगे हो गए उस चक्कर में। That's not done, no? Not done. तो आप जब you know रेसिज्म के बारे में बात करते हो, आप रिलीजन के बारे में बात करते हो, आप पर्सनल होने लगते हो, so those are unacceptable things. हम सब ने मिलकर उस सिचुएशन को संभाला है, क्योंकि जो चीज उसने अपने मुंह से बोली वो मेकर्स ने भी म्यूट कर दिया, बिकॉज दैट वाज गुड। एंटरटेनमेंट का ऐसा रूप नहीं दिखना चाहिए इंसान को। अल्टीमेटली इट्स फॉर एंटरटेनमेंट। वो झगड़ा भी एक एंटरटेनमेंट के दायरे में ही रहे तो वो एंटरटेनमेंट लगता है। उसके बाद वो बहुत ही you know आपका मामला आपके हाथों से निकल जाता है, and it's not good for anybody. So there were things that she said that I also wouldn't like to repeat. You know, before wrapping up the interview, Nisha, I want to ask कि जब आप अपना पर्सनल साइड यू नो शो में बोल रही थी, आप जाने से पहले भी बोल चुकी हैं, लेकिन काफी बार आपने चुप्पी ही रखी, आपने जब आपको लगा यू नो बोलना है तभी बोला आपने। लेकिन जब शो में जब ऐसा मौका आया जहाँ पे आप वल्नरेबल हुई, तो आपने उस बात को दबाया नहीं, आपने वो साइड अपना दिखाया। बाहर कुछ लोगों ने उन चीजों को भी जज किया कि यू नो इट इज अ वन साइड स्टोरी, व्हाई इज शी डूइंग दैट, What do you have to say? क्या बोलूँ मैं इस बारे में? I mean, I've always shared in a limited way. It was very natural. अगर आप देखें फिर से, अगर हम जून में जाएं, 1 जून 2021 में, तो मैंने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। Then I said I had spoken to a publication, TOI only. And बार-बार इस मुद्दे पे बात करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, ना ही मेरे पास इतना टाइम है, क्योंकि जो मेरी पर्सनल लाइफ है वो मेरी पर्सनल है। कोई मुझे हेल्प करने आ नहीं रहा, सिचुएशन से मुझे ही हैंडल करना है, तो उसके बारे में बात करके फायदा क्या है? Right. It only puts you in a bad space. Now I knew if I'm going the show and I'm living there 24/7 amongst other people जिनके साथ automatically आपके bonds बनेंगे, because you're human. You know, and man is a social animal. How can you have this garb or this naqab on your face all the time, right? There are moments when you let your hair down, there are moments when you cry, when you feel vulnerable. तो मुझे लगा उस moment में जहाँ तक मैं share कर सकती थी, या you know, because obviously you have to heal yourself, you have to go ahead as well. There are moments when you feel low and then you have to rise up again. So I did share, but I shared it in the most undamaging way. जितना भी you know
दूसरे इंसान को भी उस बात का डैमेज ना हो, एंड वी ऑल नो दैट व्हाट वी हैव शेयर्ड. सो व्हाट कैन आई से अबाउट पीपल जजिंग मी? आई मीन, if they still want to judge me, they can be my guest. I can't really help it. I mean, I'm not here to please anybody. I'm only here to go through my life with my challenges, with my head held high, and to do it in the most dignified way. I don't care if people judge me. Thank you so much, Nisha. हमने काफी लंबी बात कर ली, and thank you so much, and all the best, and keep rocking, keep doing the good things that you do. और जैसे आप एकदम fiery, feisty हो, वैसी रहो हमेशा. Thank you. Lots of love back. Thank you. Bye. Bye. Take care.